ادیب کی عزت، پہلا حصہ۔ صبح کے وقت حضرت قمر نے 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا اور بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے۔ یہی ان کا ناشتہ تھا۔ دودھ اور چینی ان کے نزدیک ضروریات زندگی میں نہ تھیں۔ گھر میں گئے ضرور کہ بیوی کو جگا کر پیسے مانگے، پر اسے پھٹے میلے لحاف میں سوتے دیکھ کر جگانے کو جی نہ چاہا۔ سوچا شاید مارے سردی کے رات بھر نیند نہ آئی ہوگی، اس وقت جا کر آنکھ لگی ہے۔ کچی نیند جگا دینا مناسب نہ تھا، چپکے سے لوٹ گئے۔ چائے پی کر انہوں نے قلم دوات سنبھالی اور وہ کتاب لکھنے میں محو ہو گئے، جو ان کے خیال میں اس صدی کی بہترین تصنیف ہوگی، جس کی اشاعت ان کو کیرے ناکا ج- جس کی اشاعت ان کو کیرے گمنامی سے نکال کر شہرت اور ناموری کے آسمان پر پہنچا دے گی۔ آدھ گھنٹہ کے بعد بیوی آنکھیں ملتے ہوئے آ کر بولی، چائے پی چکے؟ قمر نے خوش ہو کر جواب دیا، ہاں پی چکا، بہت اچھی بنی تھی۔ مگر دودھ اور چینی کہاں سے لائے؟ آج کل سادہ چائے اچھی معلوم ہوتی ہے، دودھ اور چینی ملانے سے چائے کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی بھی یہی رائے ہے۔ یورپ میں تو دودھ کا بالکل رواج نہیں، یہ تو ہمارے ہاں کے رئیسوں کی ایجاد ہے۔ نہ جانے آپ کو پھیکی چائے کیوں کر اچھی معلوم ہوتی ہے؟ مجھے جگال کیوں نہ لیا؟ پیسے رکھے تھے، قمر نے جواب دیا۔ قمر نے جواب نہ دیا اور پھر لکھنے لگے۔ جوانی ہی میں انہیں یہ بیماری لگ گئی تھی اور آج 20 سال سے وہ اسے پالے ہوئے تھے۔ اس بے نیازی کی شان سے جو ادیبوں کی امتیازی صفت ہے، انہوں نے کسب معاش کے کسی اور ذریعہ کی طرف توجہ نہ کی۔ اس بیماری میں جسم گھل گیا، صحت گھل گئی اور 40 سال کی عمر ہی میں بڑھاپے نے آ کر گھیر لیا۔ مگر یہ مرض لا علاج ہے۔ طلوع آفتاب سے آدھی رات تک یہ ادب کا پجاری دنیا و مافیہ سے بے خبر فکر سخن میں غرق رہتا۔ اب انہیں یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ میرے مضامین میں کوئی خوبی، کوئی معنی ہی نہیں، اور یہ انکشاف بدرجہ غایت ہمت شکن تھا۔ یوں عمر عزیز یوں تلف ہو گئی۔ یہ تسکین بھی نہیں کہ دنیا نے ناقدری کی ہو، مگر ان کا کارنامہ حیات حقیر نہیں۔ ضروریات زندگی گھٹتے گھٹتے زہد کی حدود کو بھی پار کر چکی تھی۔ اگر کوئی تسکین تھی تو محض یہ کہ ان کی رفیقہ حیات ترک و ایثار میں ان سے بھی بڑھی ہوئی تھی۔ سکینہ اس تباہ حالی میں بھی مطمئن تھی۔ قمر کو دنیا سے شکایت ہو، مگر سکینہ ہمیشہ اس کی دلجوئی کرتی رہتی تھی۔ اپنے نصیبوں کو رونا تو دور کی بات تھی، اس نے کبھی ماتھے پر بل بھی نہ آنے دیا۔ سکینہ نے چائے کا پیالہ سمیٹتے ہوئے کہا، تو جا کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ کہیں گھوم پھر کیوں نہیں آتے؟ جب معلوم ہو گیا کہ جان دے کر کام کرنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں تو بیکار کیوں سر کھپاتے ہو؟ قمر نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے کہا، لکھنے میں کم از کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ کچھ کر رہا ہوں۔ سیر کرنے میں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہر روز ہوا کھانے جاتے ہیں تو یہ کیا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ مگر ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر کرنے سے مالی نقصان نہیں ہوتا۔ اکثر تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جن کو ماہوار تنخواہ مل جاتی ہے، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عوام میں عزت ہے۔ میں تو مل کا مزدور ہوں۔ تم نے کبھی مزدوروں کو بھی ہوا کھاتے دیکھا ہے؟ جنہیں کھانے کی کمی نہیں، ان کو ہوا کی ضرورت ہے۔ جنہیں روٹیوں کے لالے ہیں وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ پھر تندرستی اور لمبی عمر کی بھی انہی کو ضرورت ہے۔ اس بار کو سر پر کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے؟ سکینہ نے مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اندر چلی گئی۔ اس کا دل کہتا تھا اس تب کا پھل ایک دن انہیں ضرور ملے گا، دولت حاصل ہو نہ ہو، لیکن قمر صاحب یاس کی حد تک جا پہنچے تھے، جہاں سے سمت مخالف میں طلوع ہونے والی امید کی سرخی بھی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ ادیب کی عزت، دوسرا حصہ۔ ایک رئیس کے یہاں کوئی تقریب ہے، اس نے حضرت قمر کو بھی مدعو کیا ہے۔ آج ان کا دل خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا ہے۔ سارے دن وہ اسی تخیل میں محو رہے۔ راجہ صاحب کن الفاظ میں ان کا خیر مقدم کریں گے اور وہ کن الفاظ میں ان کا جواب دیں گے؟ کن مضامین پر گفتگو ہوگی اور کن کن اصحاب سے ان کا تعارف کرایا جائے گا؟ سارا دن وہ انہی خیالات کے لطف اٹھاتے رہے۔ اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی جس میں انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی تھی۔ سراب ہستی ان کے زور طبع کے لیے زیادہ موزوں چیز تھی۔
मगर वो आज रईसों के जज्बात को ठेस न लगा सकते थे। दोपहर ही से उन्होंने तैयारियां शुरू की। हजामत बनाई, साबुन से नहाए, सर में तेल डाला। दिक्कत कपड़ों की थी। मुद्दत गुजरी जब उन्होंने एक अचकन बनवाई थी। उसकी हालत भी उनकी सी ही थी। जैसे ज़रा सी सर्दी या गर्मी से उन्हें ज़ुकाम या सर दर्द हो जाता था, इसी तरह वो अचकन भी नाजुक मिजाज थी। उसे निकाला और झाड़ पूंछ कर रखा। सकीना ने कहा, तुमने नाहक वहाँ जाना मंजूर किया। लिखते थे मेरी तबीयत ठीक नहीं, इन फटे हालों जाना तो और भी बुरा है। कमर ने फिलासफरों की सी संजीदगी से कहा, जिन्हें खुदा ने दिल और समझ दी है, वो आदमियों का लिबास नहीं देखते, उनके मुंह देखते हैं। आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मधु किया है। मैं कोई ओहदेदार नहीं, ज़मींदार नहीं, जागीरदार नहीं, ठेकेदार नहीं, मामूली एक शायर हूँ। शायर की कीमत उसकी नज़में होती हैं। इस नुक्ता निगाह से मुझे किसी के सामने नादिम होने की ज़रूरत नहीं। सकीना उनकी सादगी पर तरस खाकर बोली, तुम ख्यालात की दुनिया में रहते रहते हकीकी दुनिया से बिल्कुल बेगाना हो गए हो। मैं तो कहती हूँ राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाह सबसे ज़्यादा कपड़ों ही पर पड़ेगी। सादगी ज़रूर अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके मानी ये तो नहीं कि आदमी बेवकूफ़ी बन जाए। कमर को उस दलील में कुछ जान नजर आई। अहले नज़र की तरह उन्हें अपनी गलतियों के एतराफ़ में पसो पेश न था। बोले, मेरा ख्याल है चिराग जल जाने के बाद जाऊं। मैं तो कहती हूँ जाऊं ही क्यों। अब तुमको कैसे समझाऊं, हर शख्स के दिल में एहसास व एहतराम की भूख होती है। तुम पूछोगी ये भूख क्यों होती है? इसलिए क्योंकि ये हमारी रूह के इर्तिका की एक मंजिल है। हम इस अजीम शान ताकत का लतीफ़ हिस्सा हैं जो सारी ज़िंदगी दुनिया में हाजिर और नाजिर है। जुज़ में कुल की खूबियाँ होना लाजमी अमर है। इसलिए जाहो रिफ़त इल्म और फ़ज़ल की जानिब हमारा फितरी मीलान है। मैं इस हवस को मायूब नहीं समझता। हाँ, चूंकि दिल में ज़ौफ़ है, अहले दुनिया की हर्फ गिरियों का ख्याल कदम कदम पर दामनगीर हो जाता है। सकीना ने गला छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई सबील सोचते जाओ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक आना और रह गया है। जिनसे कर्ज मिल सकता था उनसे ले चुकी, और जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई। मुझे तो अब और कोई सूरत नज़र नहीं आती। कमर ने एक लम्हे के बाद कहा, वो 2 एक अखबारों से रुपया आने वाला है, शायद कल तक आ जाए। और अगर फाका कशी करनी ही पड़ी तो क्या फ़िक्र है। हमारा फ़र्ज़ काम करना है, हम काम करते हैं और दिलो जान से करते हैं। अगर इसके बावजूद फाका करना पड़े तो मेरा कसूर नहीं, मर ही तो जाऊंगा। हमारे जैसे लाखों आदमी आए दिन मरते रहते हैं। दुनिया का कोई काम बंद नहीं होता। तुम ही कहो, मैं जो करता हूँ उससे ज़्यादा मेरे इम्कान में क्या है। सारी दुनिया मीठी नींद सोती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूँ। लोग सैर व तफरीह करते हैं, खेलते कूदते हैं, मेरे लिए सब कुछ हराम है। यहाँ तक कि महीनों से हंसने की नौबत नहीं आई। ईद के दिन भी मैंने तातील नहीं मनाई। बीमार होता हूँ जब भी लिखता हूँ। सोचो, तुम बीमार थी और मेरे पास हकीम के पास जाने के लिए भी वक्त न था। अगर दुनिया नहीं कदर करती तो ना करे, इसमें दुनिया ही का नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं। चिराग का काम जलना है, उसकी रोशनी फैलती है या उसके सामने कोई दीवार है, उसे उससे मतलब नहीं। मेरा भी ऐसा कौन सा दोस्त, शनासा या रिश्तेदार है जिसका मैं शर्मिंदा एहसान नहीं। यहाँ तक कि अब घर से निकलते ही भी शर्म आती है। इत्मीनान सिर्फ इतना है कि लोग मुझे बदनीयत तस्वर नहीं करते। ख्वाह वो मेरी कुछ ज़्यादा इमदाद ना कर सकी, मगर उन्हें मुझसे हमदर्दी है। मेरी खुशी के लिए इसी कदर काफ़ी है कि आज मुझे एक रईस ने बुलाया है। फिर मान उन पर नशा सा छा गया। गुरूर से बोले, नहीं, अब रात को ना जाऊंगा। जैसे राजा लोग मधु करें वो ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता। राजा साहब मामूली रईस नहीं। अगर अब भी कोई मुझे मामूली आदमी समझे तो उसकी अक्ल का फतूर है। अदीब की इज्जत, तीसरा हिस्सा। शाम के वक्त हजरत कमर अपनी फटी पुरानी अचकन, सड़े हुए जूते और बेतुकी सी टोपी पहने घर से निकले तो गंवार उचक्के से मालूम होते थे। डील डोल और चेहरे मोहरे के आदमी होते तो इस टहाट में भी एक शान होती। फरबही बजाय खुद बारोब शय है, मगर अदबी खिदमत और फरबही में खुदा वास्ते का बैर है। अगर कोई अदीब मोटा ताज़ा है तो समझ लीजिए कि उसमें सोज नहीं, लोच नहीं, दिल नहीं। फिर भी अकड़े जाते थे। एक एक उज़्व से गुरूर टपकता था। यूं घर से निकलकर वो दुकानदारों से आंख बचाकर निकल जाते थे।
मगर आज वो गर्दन उठाए उनके सामने से जा रहे थे। आज वो उनके तकाज़ों का दंदान चिकन जवाब देने को तैयार थे। मगर शाम का वक्त था। हर एक दुकानदार खरीदो हर एक दुकान पर खरीदारों का हजूम था। कोई उनकी तरफ नहीं देखता। जिस रकम को वो बहुत ज़्यादा समझते थे वो दुकानदारों की निगाह में मामूली थी। कम अज़ कम ऐसी न थी जिसकी खातिर वो किसी की इज्जत उतार कर रखते। हज़रत कमर ने एक मर्तबा सारे बाजार का चक्कर लगाया, पर जीना भरा। तब दूसरा चक्कर लगाया, उससे भी कुछ ना बना। तब वो खुद हाफिज समद की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। हाफिज साहब बसाती का काम करते थे। कमर को देखकर बोले, वाह हजरत, अभी तक छाते के दाम नहीं मिले। ऐसे 150 गाहक मिल जाएं तो दीवाना निकल जाए, तो दीवालिया निकल जाए। अब तो बहुत दिन हो गए। हजरत कमर की बाँछें खिल गईं, दिल की मुराद पूरी हुई। बोले, मैं भोला नहीं हूँ हाफिज साहब। इन दिनों काम की इस कदर ज्यादती रही कि घर से निकलना दुश्वार था। रुपया तो हाथ नहीं आता, पर आपकी दुआ से कदर शनासों की कमी नहीं। दो चार आदमी घेरे ही रहते हैं। जिंदगी वबाल है। इस वक्त भी राजा साहब, अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। रोज़ कोई ना कोई ऐसा ही मौका आता रहता है। हाफिज साहब मरूब हो गए। अच्छा, आप राजा साहब के यहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? ठीक है। आप जैसे बाकमालों की कदर रईस ही कर सकते हैं, और कौन करेगा। अगर कोई मौका हाथ आए तो गरीब को भूल ना जाइएगा। राजा साहब की अगर इधर निगाह हो जाए तो फिर क्या पूछना। एक पूरा बिसात खाना तो इन्हीं के लिए दरकार है। 2.5-3 लाख सालाना की आमदनी है। कमर साहब को 2.5-3 लाख की आमदनी हकीर सी मालूम हुई। जुबानी जमा खर्च है तो 20 लाख कहने में क्या हर्ज है। बोले, उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं है। एक साहब का अंदाज़ा तो 20 लाख का है। मकान है, दुकानें हैं, ठेका है, अमानती रुपए हैं, और सबसे बड़ी ये बात है कि सरकार बहादुर की निगाह है। हाफिज ने बड़े इज्ज से कहा, ये दुकान आपकी है जनाब, बस इतनी ही गर्ज है। ए मुरादी, ज़रा 2 पैसे के अच्छे पान तो बनवा ला आपके लिए। आइए 2 मिनट बैठिए, कोई चीज़ दिखाऊंगा, आपसे तो घर का मामला है। कमर ने पान खाते हुए कहा, इस वक्त तो माफ़ रखिए, वहाँ देर होगी, फिर कभी हाजिर होगा। यहाँ से उठकर वो एक कपड़े वाले की दुकान पर रुके। इन्हें देखकर आंखें उठाईं। बेचारा उनके नाम को रो बैठा था। सोचता था शायद कहीं चले गए। समझा रुपए देने आए हैं। बोला, भाई आपने तो बहुत दिन से दर्शन ही नहीं दिए। कई बार रुका भेजा, मगर आदमी को आपके मकान का पता न था। मुंशी जी ज़रा देखो तो आपके नाम क्या लिखता है। कमर की रूह तकाज़ों से कांपती थी, लेकिन आज इस तरह बेफिक्र खड़े थे जैसे कोई आहनी खुद पहन लिया हो, जिस पर कोई हथियार कारगर नहीं होता। बोले, ज़रा राजा साहब के यहाँ हो आऊँ तो बेफिक्र होकर बैठूँ। इस वक्त नहीं, जल्दी में हूँ। राजा साहब पर कई 100 रुपए निकलते थे, फिर भी उनका दामन न छोड़ता था। 1 के 3 वसूल करता। इसने कमर को भी इस जमात में रख लिया जिसका पेशा रईसों को लूटना है। बोला, पान तो खाते जाइए जनाब। राजा साहब 1 दिन के हैं, हम तो 12 महीनों के हैं। कुछ कपड़ा दरकार हो तो ले जाइए। ईद आ रही है, मौका मिले तो राजा साहब के खजांची से कहना, पुराना हिसाब बहुत दिनों से पड़ा है, अब तो साफ हो जाए। अब हम ऐसा कौन सा नफ़ा लेते हैं कि 2-2 साल तक हिसाब ही ना हो। कमर बोले, इस वक्त पान धान रहने दो भाई, देर हो जाएगी। जब उन्हें उन्हें मुझसे मिलने का इस कदर इश्तियाक है और मेरा इतना अदब करते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि उन्हें तकलीफ़ ना होने दूँ। हम तो कदरदानी चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं। कोई हमें चाहे तो हम उसके ग़ुलाम। किसी को रियासत का गरूर है तो हमें भी अपने इल्म कमाल का गरूर है। अदीब की इज़्ज़त, चौथा हिस्सा। हज़रत कमर राजा साहब के बंगले के सामने पहुँचे तो दिए जल चुके थे। अमीरों और रईसों की मोटरें खड़ी थीं। दरवाजे पर वर्दी पोश दरबान खड़े थे। एक साहब मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। कमर को देखकर वो झिझके, फिर उन्हें सर से पाँव तक देखकर बोले, आपके पास कार्ड है? कमर साहब की जेब में कार्ड था, मगर उस मुतालबे पर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हीं से कार्ड क्यों मांगा गया? औरों से तो कोई पूछता नहीं। बोले, मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं। अगर आप दूसरों से कार्ड मांगते तो मैं भी दिखा देता, वरना मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ। आप राजा साहब से बोलिए कि
कमर आया था, लौट गया। वो बोले, नहीं नहीं जनाब, अंदर चलिए, आपसे तारुफ न था, माफ़ फरमाइए। आप ही जैसे असहाब से तो महफिल की रौनक है। खुदा ने आपको वो कमाल अता फरमाया है कि सुब्हान अल्लाह। उस शख्स ने कमर को कभी ना देखा था, मगर उसने जो कुछ कहा वो हर एक मुसन्निफ, हर एक शायर के मुतालिक कहा जा सकता है, और हमें यकीन है कि कोई अदीब इस दाद से मुस्तशना नहीं। कमर अंदर पहुंचे तो देखा कि बारादरी के सामने वसी और आरास्ता अहाते में बिजली के लैंप रोशन हैं। वस्त में एक हौज़ है, और हौज़ में संगे मरमर की एक परी परी के सर पर फवारा। फवारे की फवारें रंगीन लैंपों से रंगीन होकर ऐसी मालूम होती थीं जैसे कौसे कौसे कज़ा पिघल कर रिस रहा हो। हौज़ के चारों तरफ मेज़ें लगी थीं, मेज़ों पर सफ़ेद पोश, उन पर खूबसूरत गुलदस्ते। कमर को देखते ही राजा साहब ने खैर मकदम किया। आइए आइए, अब कि आपकी नज़म देखकर दिल खुश हो गया। मुझे मालूम न था इस शहर में आप जैसे रत्न भी छुपे हुए हैं। फिर बैठे हुए आप से उनका तारुफ कराने लगे। आपने हज़रत कमर का नाम तो सुना होगा। वो आप ही हैं। क्या शीरीनी है, क्या जिद्दत है, क्या तख़य्युल है, क्या रवानी है, क्या नुदरत है कि वाह, मेरा तो दिल आपकी चीज़ें पढ़कर नाचने लगता है। एक साहब ने जो अंग्रेज़ी सूट में थे कमर को ऐसी निगाहों से देखा गोया वो चिड़िया घर का कोई जानवर हो, और बोले, आपने अंग्रेज़ी शायरी का भी मुतालिया किया? बायरन, जो शीले, टेनिसन वगैरह? कमर ने बेइतनाई से जवाब दिया, जी हाँ, थोड़ा बहुत देखा है। आप इन उस्ताद आप इन उस्तादाने फ़न की किताबों में से किसी का तर्जुमा कर दें तो आप अपनी ज़ुबान की बड़ी खिदमत करेंगे। कमर अपने आप को बायरन, शीले से जो भर काम न समझते थे। बोले, हमारे यहाँ रूहानियत का भी इतना फुकदान नहीं हुआ कि मगरिबी शायरों से भीख मांगे। मेरा ख्याल है कम अज़ कम इस मज़मून में हम अब भी मगरिब को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अंग्रेज़ी पोश साहब ने कमर को पागल समझा। राजा साहब ने कमर को ऐसी नज़रों से देखा गोया कह रहे हों कि ज़रा मौका और महल देख कर बातें करो, और बोले, अंग्रेज़ी लिटरेचर का क्या कहना, शायरी में तो अब इसका जवाब नहीं है। अंग्रेज़ी पोश, हमारे शायरों को अभी तक इतना भी मालूम नहीं कि शायरी के क्या मानी हैं। वो अभी तक हिज्र विसाल को शायरी का मुंतहाई मकसूद समझे बैठे हैं। कमर ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मेरा ख्याल है आपने हिंदुस्तानी शुअरा का कलाम अभी तक देखा ही नहीं, और अगर देखा है तो समझा नहीं। राजा साहब ने कमर का मुंह बंद करने का फैसला किया और बोले, आपके मज़ामीन अंग्रेज़ी अखबारात में छपते हैं और लोग उन्हें बड़े शौक से पढ़ते हैं। इसके मानी ये हैं कि अब आप ज़्यादा ना बहकिए। एक और साहब आए। राजा साहब ने तपाक से उनका भी इस्तकबाल किया। आइए डॉक्टर, मिजाज तो अच्छे हैं। राजा साहब ने कमर का तारुफ कराया। आप हज़रत कमर शायर हैं। डॉक्टर साहब ने ख़ास अंदाज से कहा, अच्छा, आप शायर हैं? और बग़ैर कुछ कहे सुने आगे बढ़ गए। ये तमाशा कई मरतबा हुआ और हर बार कमर को यही दाद मिली, अच्छा, आप शायर हैं। ये अल्फाज हर मरतबा कमर के दिल पर नया सदमा पहुंचाते थे। उनका बातनी मफहूम कमर से छुपाना था। आम अल्फाज में ये मतलब था, तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते हो, पकाओ, यहाँ तुम्हारा क्या काम, तुम्हारा इतना हौसला कि इस महफिल में चले आओ। कमर अपने ऊपर झुंझला रहे थे। दावती कार्ड पाकर वो फूले ना समाये थे, लेकिन यहाँ आकर उनकी जिस कदर तजलील हुई उसको देखकर अपना इत्मीनान का झोंपड़ा जन्नत से कम न था। उन्होंने अपने आप को तान किया, तुम्हारे जैसे इज़्ज़त के हवसमंदों की यही सज़ा है। अब तो आंखें खुलें कि तुम कितनी इज़्ज़त के मुस्तहिक हो। तुम खुद इस ख- तुम खुद इस गर्ज़मंद दुनिया में किसी के काम नहीं आ सकते। वकील तुम्हारा एहतराम क्यों करें, तुम उनके मौक्कल नहीं हो सकते। डॉक्टर और हकीम तुम्हारी तरफ क्यों देखें, उन्हें बग़ैर फ़ीस के घर आने की ज़रूरत नहीं। तुम लिखने के लिए बने हो, लिखते जाओ, इस दुनिया में तुम्हारा और कोई मसरफ़ नहीं। यकायक लोगों में हलचल मच गई। आज का जलसा जिन साहब के एजाज़ में था, वो यूरोप से कोई बड़ी डिग्री लेकर आए थे। राजा साहब ने लपक कर उनसे हाथ मिलाया और कमर से बोले, आप अपनी नज़म तो लाए होंगे। कमर ने जवाब दिया, मैंने कोई नज़म तैयार नहीं की। सच, अब तो आपने गज़ब ही कर डाला। अरे भले आदमी, तो अब ही बैठ कर कोई चीज़ लिख लो, और दो चार शेर हो जाएंगे। ऐसे मौका पर नज़म का पढ़ा जाना लाजमी है।
میں اس قدر جلدی کوئی چیز نہیں لکھ سکتا۔ میں نے بیکار اتنے آدمیوں سے آپ کا تعارف کرایا؟ بالکل بیکار۔ ارے بھائی جان، کسی پرانے شاعر ہی کی کوئی چیز سنا دیجیے، یہاں کون جانتا ہے؟ جی نہیں، معاف فرمائیے، میں بھاٹ یا میراثی نہیں ہوں۔ یہ کہتے کہتے حضرت قمر وہاں سے چل دیے۔ گھر پہنچے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ سکینہ نے خوش ہو کر پوچھا، اتنی جلدی کیوں کر چلے آئے؟ میری وہاں ضرورت نہ تھی۔ چہرہ کھلا ہوا ہے، خوب عزت افزائی ہوئی ہوگی، ایسی کہ خواب میں بھی امید نہ تھی۔ خوب خوش ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا۔ میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میں یہ بات بھول گیا تھا، مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا۔ میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا کہ آدمی خدمت پوری عبادت ہے۔ آخری تحفہ۔